Lesson 6. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के मन में ये विचार आया कि यदि उसे 3 बातें पता चल जाएं, तो वह कभी असफल नहीं होगा. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? ये 3 बातें थीं. किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? The king, therefore, sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में संदेशवाहकों को भेजा और ये घोषणा की कि जो कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर देगा, उसे बहुत बड़ी धनराशि दी जाएगी. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, लेकिन सभी ने उसके प्रश्नों के अलग-अलग उत्तर दिए. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारिणी बनानी चाहिए और फिर उसे कड़ाई से पालन करना चाहिए. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. उन्होंने कहा कि केवल इसी तरीके से वह हर कार्य को सही समय पर कर सकता है. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अन्य लोगों ने कहा कि पहले से किसी कार्य के लिए सही समय तय करना असंभव है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. राजा को हर चीज पर ध्यान देना चाहिए, मूर्खतापूर्ण आनंद से बचना चाहिए और जो भी उस समय आवश्यक लगे उसे करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ अन्य लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद की जरूरत है जो उसे उचित समय पर कार्य करने में सहायता करेगी. This was because one man would find it impossible to decide correctly, without help from others, the right time for every action. ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति के लिए अकेले, बिना दूसरों की सहायता के, हर कार्य के लिए सही समय तय करना असंभव होगा. But then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन कुछ और लोगों ने कहा कि कुछ कार्य अत्यधिक आवश्यक हो सकते हैं. These things could not wait for the decision of the council. ये कार्य परिषद के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. किसी कार्य के लिए सही समय तय करने के लिए भविष्य को देखना आवश्यक है और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं. The king, therefore, would have to go to magicians. इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना होगा. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied. चूँकि उसके प्रश्नों के उत्तर इतने अलग-अलग थे, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुआ. The king gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit, who was widely famous for his wisdom. राजा ने कोई इनाम नहीं दिया. इसके बजाय उसने एक निश्चित सन्यासी से सलाह लेने का निर्णय लिया, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध था. The hermit lived in a wood which he never left. सन्यासी जंगल में रहता था और वह उसे कभी नहीं छोड़ता था. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. वह केवल साधारण लोगों से मिलता था, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguards and went on alone. सन्यासी की कुटिया तक पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षकों के पास छोड़ दिया और अकेले ही आगे बढ़ा. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि सन्यासी अपनी कुटिया के सामने जमीन खोद रहा था. He greeted the king and continued digging. उसने राजा का अभिवादन किया और खुदाई करता रहा. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. सन्यासी बूढ़ा और कमजोर था और जैसे ही वह काम कर रहा था, वह भारी सांस ले रहा था.
The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा सन्यासी के पास गया और कहा, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ। How can I learn to do the right thing at the right time? मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूँ? Who are the people I need most? मुझे किन लोगों की सबसे अधिक आवश्यकता है? And what affairs are the most important? और कौन से कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं? The hermit listened to the king, but did not speak. सन्यासी ने राजा की बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला. He went on digging. वह खुदाई करता रहा. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. आप थक गए हैं, राजा ने कहा. मुझे फावड़ा दीजिए, मैं आपकी जगह काम कर देता हूँ. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. धन्यवाद, सन्यासी ने कहा और राजा को अपना फावड़ा दे दिया. फिर वह जमीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली, तो वह रुका और अपने प्रश्न दोहराए. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest, and let me work. सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वह खड़ा हुआ, फावड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, अब आप आराम करें, मुझे काम करने दें. But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और खुदाई करता रहा. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा भी. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said. सूरज पेड़ों के पीछे चला गया और आखिर में राजा ने फावड़ा जमीन में गाड़ दिया और कहा, I came to you, wise man, for an answer to my questions. हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर लेने आया था. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. यदि आप उत्तर नहीं दे सकते, तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर लौट जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. कोई भागता हुआ आ रहा है, सन्यासी ने कहा. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी ओर भागा चला आ रहा था. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसके हाथ उसके पेट पर थे, जिससे खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े हटाए और देखा कि उसके पेट में गहरा घाव था. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने घाव को धोकर अपनी रुमाल से ढक दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने घाव पर बार-बार पट्टी बांधी, जब तक कि खून बहना बंद नहीं हुआ. With the hermit's help, the king carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. सन्यासी की मदद से राजा घायल व्यक्ति को कुटिया में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. चलने और काम करने से थका हुआ राजा जमीन पर लेट गया और रात भर सोता रहा. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वह जागा, तो उसे याद करने में कुछ मिनट लगे कि वह कहाँ है और बिस्तर पर पड़ा अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake. मुझे क्षमा करें, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कमजोर आवाज में कहा, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका है. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें क्षमा करने जैसा कुछ भी नहीं है, राजा ने कहा. You do not know me, but I know you.
आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वही शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और मेरी संपत्ति छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मुझे पता था कि आप अकेले उस सन्यासी से मिलने गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने तय कर लिया था कि जब आप लौटेंगे तो मैं आपको मार दूंगा। But the day passed and you did not return. लेकिन दिन बीत गया और आप नहीं लौटे। So I left my hiding place. इसलिए मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। And I came upon your bodyguards who recognized me and wounded me. और मैं आपके अंगरक्षकों के सामने आ गया जिन्होंने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। I escaped from them but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उनसे बचकर भागा, लेकिन अगर आपने मेरे घावों की मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर जाता। I wish to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचा ली। Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. अब यदि मैं जीवित रहा तो मैं आपका सबसे वफादार सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा और अपने बेटों को भी ऐसा करने का आदेश दूंगा। Forgive me. मुझे क्षमा करें। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा अपने शत्रु से इतनी आसानी से सुलह करके और उसे मित्र बना लेने से बहुत प्रसन्न था। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा कुटिया से बाहर आया और सन्यासी को ढूंढने लगा। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. सन्यासी घुटनों के बल बैठा उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो एक दिन पहले खुदी थी। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." राजा सन्यासी के पास गया और कहा, आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, हे बुद्धिमान पुरुष। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. आपको पहले ही उत्तर मिल चुका है, सन्यासी ने कहा, जबकि वह अभी भी जमीन की ओर झुका हुआ था और राजा को देख रहा था। How have I been answered? What do you mean? मुझे उत्तर कैसे मिल गया? आपका क्या मतलब है? Do you not see? Replied the hermit. क्या आप नहीं समझते? सन्यासी ने उत्तर दिया। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. यदि आपने कल मेरी दुर्बलता पर दया न दिखाई होती और मेरे लिए ये क्यारियां न खोदी होती, तो आप चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तब वह व्यक्ति आप पर हमला कर देता और आप यह सोचते कि काश आप मेरे साथ रुके होते। So the most important time was when you were digging the beds. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियां खोद रहे थे। And I was the most important man, and to do me good was your most important business. और मैं उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरा भला करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Afterward, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. बाद में जब वह व्यक्ति हमारी ओर दौड़कर आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसके घावों की मरहम पट्टी न की होती तो वह मर जाता और आपसे सुलह नहीं कर पाता। So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. इसलिए वह व्यक्ति उस समय सबसे महत्वपूर्ण था और जो आपने उसके लिए किया वही आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. इसे याद रखें, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय अभी है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हम कुछ कर सकते हैं। The most necessary person is the person you are with at a particular moment.
सबसे आवश्यक व्यक्ति वही होता है जो उस क्षण आपके साथ होता है। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और क्या हम किसी और से मिलेंगे या नहीं। The most important business is to do that person good. सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उस व्यक्ति का भला करना। Because we were sent into this world for that purpose alone. क्योंकि हमें इस संसार में केवल इसी उद्देश्य से भेजा गया है। Word meaning, council, a group of people chosen to give advice or to make rules. परिषद, सलाह देने या नियम बनाने के लिए चुने गए लोगों का समूह। Hermit, person who lives alone and leads a simple life. संत योगी, जो अकेले और साधारण जीवन व्यतीत करता है। Affairs, things, matters, business, मामले, कार्य या व्यापार से जुड़े विषय। Beds, small patches of ground for growing plants. Carry, पौधों को उगाने के लिए तैयार की गई जमीन। Fainted, lost consciousness, बेहोश हो जाना, चेतना खो देना। Redressed, again apply bandage and medicine to an open wound. फिर से पट्टी बांधना, घाव पर दोबारा दवाई और पट्टी लगाना। Like, share and subscribe.